A very good afternoon to one and all present here. I am Dr. Dipankar Sharma. It's my privilege to welcome you all on behalf of Dr. K.N. Modi Foundation to this webinar, Women Empowerment, Legal Rights. Empowerment provides a greater access to knowledge and resources, more independence in decision making, and considerable ability to plan lives, more control over the circumstances which influence lives, and freedom from custom, beliefs, and practices. Thus, women empowerment is a process in which women challenge the existing norm and culture to effectively promote their well-being. In India, women empowerment is a buzzword today. The Indian Constitution guarantees that there shall be no discrimination on the ground of gender. There are various legal provisions for women's safety and empowerment in Indian Constitution, but the irony is half of the population is unaware of their legal rights. During this webinar, we shall discuss the important legal provisions for women empowerment in India against the criminal activities like homicide for dowry, dowry deaths and their attempts, molestation, the protection of women from domestic violence, sexual harassment, kidnapping, and abduction for different purposes. For this, today we have with us Advocate Vishal Satyaprakash Saxena ji. I warmly welcome him on behalf of Dr. K.N. Modi Foundation. Advocate Saxena is a lawyer by profession and practice at Honorable Supreme Court of India and Bombay High Court. He specializes in criminal laws, and in respect of civil laws, he specializes in housing society matters and the property disputes. Advocate Saxena did his chartered accountancy from the Institute of Chartered Accountant of India, Delhi. He also did a postgraduate diploma in business management, specializing in finance, and he is a law graduate too. Advocate Saxena is on the panel of Maharashtra Police Training Academy, and he imparts training to the police officers from all over the Maharashtra and train them how to deal with the women complaints who are victim of sexual and other kind of harassment. He deals with all types of criminal matters. Apart from being a fitness freak, Advocate Saxena loves to play squash and cricket. He also writes Urdu poetry, and he already a book of his own sayari named as Masoom Ki Kalam Se. So we warmly welcome Advocate Saxena, and I would like to request him to continue this webinar. Thank you, Dipankar. Today, the topic is heavy, but I'll try to make it as light as possible. The name of our topic is Women Empowerment and Legal Rights. See, the topic is very vast. When I train police officers, so it normally takes 3 to 4 hours. But today, as I have concluded that the session is like I have a time limit, so I'll try to make it as fast as possible. But हाँ, आप लोगों की समझ में आएगा तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा. Like women empowerment को I have divided into 3 categories. The legal rights of available to women. Now, first of all, we'll talk about the violence, the harassment that a woman face in day-to-day life. Now, I have divided into 3 major parts. First, होता है लेकिन बहुत कम लेडीज के साथ होता है. Second, maybe 60-70% लेडीज के साथ होता है. And third, maybe 80-90% लेडीज के साथ होता है. Am I audible? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes sir, yes sir. हाँ. तो मनीष जी स्लाइड्स दिख रही हैं क्या? मुझे नहीं दिख रही हैं स्लाइड्स. मुझे नहीं दिख रही. कि पहली बात तो ये कि हमारा स्टेट, मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ. यूपी बिहार ठीक है होता है, लेकिन हर स्टेट में कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है. महाराष्ट्र में बैठा हूँ मैं इस समय, तो महाराष्ट्र के पीछे नहीं है किसी भी चीज में. क्राइम आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, हैदराबाद का हम लोग देख चुके हैं, महाराष्ट्र का आप लोग देख रहे हैं, गुजरात में होता है, हर स्टेट में होता है. तो ये सेक्शन कहीं भी लेडीज के साथ हो सकता है. और मैं बता दूं, ये सेक्शन सिर्फ लेडीज के लिए ही नहीं है, ये सेक्शन आदमी लोग भी दूसरे आदमियों के लिए यूज कर सकते हैं.
बिकॉज ये सेक्शन बताता है कि अगर आपके हाथ में माइक है या आप किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं और आप कुछ ऐसे वर्ड्स अटर करते हैं जिसकी वजह से एक न्यूसेंस क्रिएट होता है, एक माहौल खराब होता है उस जगह का, तो कोई भी इस सेक्शन के अंदर आपकी कंप्लेंट कर सकता है। अब क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि ये सेक्शन वुमेन भी यूज कर सकती है, और इसमें जरूरी नहीं है कि लड़का उसे छेड़े, जैसे हम देख रहे हैं स्लाइड में कि वो गाना गा रहा है। एक्चुअली जरूरी नहीं है, हो सकता है दो आदमी लोग आपस में बात कर रहे हों, गाली गलौज कर रहे हो, और वो उस लेडी के लिए आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी हो जाती है, देन ऑल्सो लेडी कैन फ्रेम यू इन सेक्शन 294। इवन एक अगर हस्बैंड एक वाइफ को पब्लिक प्लेस पे गालियां देता है, जो कि एक केस में हो चुका है, एक डॉक्टर था उसने अपनी वाइफ को गालियां देना शुरू किया, तो उसने फिर ये सेक्शन 294 भी उसके अगेंस्ट यूज किया। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा मैंने बताया कि अभी डेफिनेशन क्या कहती है कि whosoever sings any offering। आप देखिए ज्यादातर क्या होता है, हमारे नवदुर्गों का प्रोग्राम होता है, महाराष्ट्र में गणपति पंडाल लगते हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है कई बार ऐसे इंसिडेंसेस अक्सर हुए हैं कि जहाँ धार्मिक जगह पे, धार्मिक स्थलों पे भी कुछ अश्लील गाने चलाए गए थे, इसलिए सेक्शन फोर्स में है, ऑब्वियसली 3 साल की सजा है। यस, नेक्स्ट। ये सजा और ये सेक्शंस आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बस इतना समझिए कि हाँ इस तरीके का एक हैरेसमेंट होता है जिसमें सजा का प्रोविजन है हमारे आईपीसी। नेक्स्ट प्लीज। नाउ अभी एक बॉम्बे में एक केस हुआ था कि एक घर में एक पार्टी चल रही थी और काफी लेडीज भी उसमें शामिल थी, आदमी लोग भी शामिल थे, काफी हो हल्ला हो रहा था, शराब पी जा रही थी। तो एक जर्नलिस्ट साहब अपने घर से उतरे और चिड़ियों से उन्होंने आवाजें सुनी, ऑब्वियसली नेबरहुड डिस्टर्ब होता है, तो उन्होंने कंप्लेंट करी पुलिस में और केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर हुई। उसके कंप्लेंट के अगेंस्ट वो साहब जिनका घर था वो गए बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो इस सेक्शन का जो वैलिडिटी है वो सिर्फ पब्लिक प्लेस के लिए है। आपका अगर घर में आप बैठ के कुछ भी कर रहे हो, दैट विल नॉट कम अंडर सेक्शन 294। हाँ, आप दूसरे सेक्शन लगा सकते हैं कि मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है या इलीगली यहाँ शराब पी जा रही है, लेकिन सेक्शन 294 नहीं लगेगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस के लिए है, प्राइवेट प्लेस के लिए नहीं। नेक्स्ट। अब यहाँ से स्पेसिफिकली हम लेडीज के लिए शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले ये बहुत ही कॉमन सेक्शन है जो लगता है, सेक्शन 509 आईपीसी का। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी आपका जेस्चर, कोई भी आपका ऐसा एक्ट जिसकी वजह से एक वुमेन की मॉडेस्टी खतरे में पड़ सकती है, उसकी इज्जत खतरे में पड़ सकती है, तो ये सेक्शन 509 लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने उसको स्वीट हार्ट भी बोल दिया किसी गलत तरीके से, आपने उसको हनी माय जान, यू आर लुकिंग हॉट, इस टाइप से बोल दिया, तो ये सेक्शन आपको लगेगा। अभी आगे भी हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं कि अब आप लोग पूछेंगे क्या ऐसा जेस्चर होता है या क्या ऐसा साउंड होती है, क्या ऐसा वर्ड होता है। तो एक केस में भाई साहब बाइक से जा रहे थे और एक लड़की कॉलेज जा रही थी, तो उन्होंने उसको बाइक पे बैठने का ऑफर दिया, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से ऑफर दिया कि माय स्वीटहार्ट यू कम एंड राइड, हैव अ राइड विद मी ऑन माय बाइक एंड यू विल फील हॉट। तो इस तरीके के जो जेस्चर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, ये सेक्शन लगता है 509 का, इसमें 1 साल की सजा का प्रोविजन है। यस सर, नेक्स्ट। ये मैं जो केस बता रहा था आपको, बाइक वाला। नेक्स्ट। अब और जो वायलेंस होते हैं लेडीज के अगेंस्ट, 3 अभी जो मेजर होता है वो होता है मिसकैरेज, मतलब एबॉर्शन। अभी एबॉर्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शंस। एबॉर्शन पहला, जिसमें उसकी रजामंदी हो सकती है वुमेन की, सेकंड उसकी कंसेंट नहीं है, और थर्ड उसकी कंसेंट नहीं है और डेथ हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर मिसकैरेज जो फोर्सफुल होता है वो क्यों होता है, उसकी वजह ये होती है, एक तो आपको पता चल जाता है कि फीमेल चाइल्ड है, इस वजह से जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनको मना कर दिया गया है कि आप टेस्ट ना करें। फिर भी किसी वजह से अगर पता लगता है या बच्चा नहीं चाहिए होता है, तो लोग कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, हस्बैंड के रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो मेजरली इस वजह से एक वुमेन का मिसकैरेज होता है। बट एक्सेप्शन यह है इस रूल का कि अगर वो मिसकैरेज उसके हेल्थ के लिए जरूरी था,
तो फिर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। नाउ पहला है कि कॉजिंग मिसकैरेज है और वो गुड फेथ में नहीं हुआ है या फिर उसकी लाइफ बचाने के लिए भी नहीं हुआ है, तो उसकी सजा 3 साल है। अच्छा, आप 1 2 3 4 5th लाइन का अगर एंड देखेंगे तो 6th लाइन का स्टार्टिंग देखें तो उसमें लिखा है इफ द वुमेन बी क्विक विथ चाइल्ड। क्विक विथ चाइल्ड का मतलब होता है व्हेन अ लेडी इज स्टार्टेड फीलिंग वाइब्रेशंस ऑफ चाइल्ड इन हर, मतलब उसकी बॉडी में। जैसे कभी कभी आप हाथ लगाते हैं तो खुशी से हम लोग कहते हैं अरे बच्चे ने पैर हिलाया या हाथ हिलाया। अगर वो चीज शुरू हो चुकी है उसके बाद एबॉर्शन हुआ है तो उसकी सजा बढ़ा के 7 years हो जाती है। और अगर कोई वुमेन अपने आप भी मिसकैरेज करने जाती है तो उसके लिए भी ये पीनल प्रोविजन है। यस सर, नेक्स्ट। नाउ विदाउट वुमेन कंसेंट, इसमें वो क्विक विथ चाइल्ड का होना या ना होना जरूरी नहीं है और इसकी इम्प्रिजनमेंट आप देखिए, खुद देखिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 10 साल की सजा भी है। नेक्स्ट। अब यहाँ डेथ हो जाती है तीसरे केस में। पहला केस हमने देखा कि उसकी रजामंदी हो सकती है और लेकिन वो गुड फेथ में नहीं है, किसी हेल्थ रीजंस की वजह से नहीं है। सेकंड हमने देखा विदाउट कंसेंट है। और थर्ड हम लोग देख रहे हैं कि उसमें अगर एक्ट विदाउट कंसेंट है और उसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली इसकी सजा या तो 10 साल है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यस, नेक्स्ट। अब ये बहुत ही स्लाइड से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि यू विल बी एबल टू गेस कि मैं किस टॉपिक पे आऊंगा। जब मैं छोटे थे तो हम लोग सुनते थे कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लड़का लड़की को पसंद करता है बट लड़की हैज नॉट कंसेंटेड और हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू हिज लव। तो क्या करते थे लड़के, या तो केमिस्ट्री लैब से एसिड उठा लेते थे या फिर दुकानों से एसिड वगैरह बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और मेजर रीजन यही थे कि बाइक पे बैठे अपने दोस्त को पीछे बिठाया, लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है, कॉलेज के बाहर खड़ी है, तो बड़े आराम से एसिड फेंक के हम चले जाते थे। अभी मेरे ख्याल से लेटेस्ट मूवी भी आई थी इसकी, छपाक करके एक मूवी थी। तो पहले आईपीसी में ये थ्रोइंग ऑफ एसिड का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। एसिड ऑफ थ्रोइंग ऑफ एसिड का बाद में प्रोविजन आया जबकि ऐसे इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा होने लगे। इनको भी फिर हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा। एक तो थ्रोइंग ऑफ एसिड जिसकी वजह से आपका चेहरा या आपकी पूरी बॉडी को कहीं बहुत बड़ा हार्म पहुंचता है, या सेकंड पहुंचता नहीं है लेकिन आपने कोशिश तो करी उस पर एसिड फेंकने की। यस सर, नेक्स्ट। थ्रोइंग एसिड को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है कि एक तो ये कि जिसकी वजह से परमानेंट या पार्शियल डैमेज हो गया है, या बर्न्स हो गए हैं, या डिस्फिगर हो गई है बॉडी, या किसी भी पार्ट पे ग्रीवियस हर्ट हो गया है। और सेकंड, किसी ने अटेम्प्ट करा है विद द इंटेंशन, इंटेंशन ही बहुत है कि आप उसको ये चाह रहे थे कि उसका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए या चेहरा डैमेज हो जाए। तो 2 पार्ट्स में थ्रोइंग ऑफ एसिड को डिवाइड। नेक्स्ट। अब मैं बहुत ही सीरियस एक टॉपिक पे आऊंगा, बस ये थोड़ा सा 2 मिनट और बियर कीजिएगा, उसके बाद हम थोड़ा लाइट हो जाएंगे। रेप मूवी देखी होगी आप लोगों ने, सेक्शन 376 एक मूवी आई। रेप भी एक तरीके का रेप नहीं होता। हमने ऑब्वियसली देखा है निर्भया के केस में कि जब फॉरेन ऑब्जेक्ट्स भी उसकी बॉडी में इंसर्ट किए गए थे। एक रेप होता है कि जब आप ऐसी स्टेज में पहुंच जाएं कि जिसे हम वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं लीगल टर्म्स में, अदरवाइज यू कैन से कोमा ऑल्सो। ये अरुणा शानबाग है, अगर कोई पहचाने तो, बहुत ही फेमस केस हुआ था मुंबई में। इनको कंपाउंडर ने रेप किया था, बिल्कुल जैसे डॉग को चेन वेन से बांधते हैं उस चेन से बांध के रेप हुई थी ये। और उसके बाद ये काफी सालों तक कोमा की स्टेट में थी और रिसेंटली फिर इनकी शी पास्ड अवे। नाउ दिस इज वन फॉर्म ऑफ रेप। यस, नेक्स्ट। So rape causing death or resulting in persistent vegetative state. तो इसकी रिग्रेस जो सजा है वो 20 years है या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है। अच्छा, यहाँ आजीवन कारावास का मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक का कारावास या फिर डेथ। अच्छा, हम लोग देखेंगे कि रेप के भी सजा एक जैसी नहीं है। किसी किसी रेप में सजा डेथ नहीं है, किसी किसी में 10 साल है, किसी में 15 साल है, विच आई बैक टू डिफर, बिकॉज मेरे हिसाब से हर रेप कैसा भी हो, चाहे वो किसी छोटी बच्ची के साथ हो, चाहे वो टीनेजर के साथ हो, चाहे वो यंग लेडी के साथ हो, या 80 years 90 years की लेडी के साथ हो,
रेप की सजा मेरे हिसाब से हमेशा डेथ होनी चाहिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने भी बोला था कि रेप इज नॉट ओनली अ डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉडी बट इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोल। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि व्हेन यू आर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो लेडीज को कोई टच भी करता है तो उनको कितना बुरा लगता है। तो सोचिए जब एक लेडी रेप हो रही होगी तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वी हैव सीन निर्भया, वी हैव सीन हैदराबाद कांड एंड व्हाट, मतलब हमको पता लगता है कि हर एक घंटे में कितने रेप्स हो जाते हैं हमारी कंट्री में। बट यस, अभी तो लॉ यही है कि हर तरीके के रेप की सजा थोड़ी अलग ही है। यस, नेक्स्ट। अच्छा, काफी बार हम लोगों ने देखा है कि डिवोर्स केस चल रहा है और डिवोर्स केस में क्या होता है कि कोर्ट कहता है कि आपको थोड़े दिन के लिए अलग रहना पड़ता है, मे बी फॉर 6 months और 1 year। लेकिन हस्बैंड अगर जबरदस्ती करते हैं उस पीरियड में फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए विदाउट हर कंसेंट, तो भी इस आईपीसी में एक बिल्कुल स्पेसिफिक सेक्शन आया 376B, तो ऐसे हस्बैंड्स के लिए भी आईपीसी का प्रोविजन लगेगा और सजा हो। नेक्स्ट, ऑब्वियसली आई विल कम टू दिस पॉइंट। इसमें मैं आज वो टॉपिक नहीं कवर करूंगा। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसको हम पॉक्सो बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक एक्ट है और ज्यादातर हम लोग नॉर्मली पॉक्सो कोर्ट के सामने से भी बहुत शांति से गुजरना पड़ता है, बिकॉज जब बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं तो वी कैन फील द इमोशंस। नेक्स्ट, तो अगर 12 साल की कम बच्ची के साथ रेप हो तो उसकी सजा है नॉट लेस देन 20 years, या फिर उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। अब आप खुद सोचें कि 12 साल की बच्ची से कम के साथ रेप हुआ है तो ऑब्वियसली डेथ के अलावा कोई प्रोविजन होना ही नहीं चाहिए, बट है 20 years का है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का है या फिर हैंग टिल डेथ का है। और सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है विक्टिम को दिए जाएंगे जिसने भी ऑफेंस कमिट किया है, और वो मेडिकल एक्सपेंसेस उस विक्टिम के इलाज के लिए पूरे पड़ने चाहिए, वो उतने एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं हम पर्सन इन अथॉरिटी अगर रेप करता है। पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन आपके ऑफिस में, समझिए आपका बॉस है, जिसको आप ना करने से पहले डरेंगे। यू विल हैव अ फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के डीन, प्रिंसिपल्स, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट या डॉक्टर्स, अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल में तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स, और अगर आप जेल में हैं तो ऑब्वियसली सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, या अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपके बॉसेस, मैनेजमेंट, इस तरीके के लोग अगर आपको फोर्स करते हैं तो उस चीज के लिए आईपीसी में स्पेसिफिक प्रोविजन है। वो हम आगे भी देखेंगे कि हैरेसमेंट भी होता है। और आईसीसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, शायद आपके इंस्टीट्यूट में है क्या दीपांकर जी? जी सर, है ऑलरेडी। हाँ, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी होती है। तो अभी आईसीसी की बात देख लिए तो मैं बता दूं लेडीज के लिए कि इफ अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हम आगे बात करेंगे, और आपको लगता है कि आईसीसी अगर ठीक तरीके से उसे टैकल नहीं कर पा रही है, तो पैरेलली आल्सो यू कैन गो टू पुलिस एंड हैव सम लीगल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट, अब यहाँ हम देखें स्लाइड में 2 हाथ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आई एम कमिंग टू गैंग रेप। गैंग रेप मतलब एक से ज्यादा। नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ईच पर्सन को रेप में शामिल माना जाएगा, और उतने ही दोनों के लिए, मतलब 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, सबको रेप में ही आईपीसी के अंदर उनको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट, अब ये देखिए, पहले हमने 12 साल की बच्ची देखी, अभी सब अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये ईयर वाइज जो डिवीजन है ये बाद में आया है। अब यहाँ 16 साल की बच्ची के साथ अगर रेप हुआ है और गैंग रेप हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का है और विथ फाइन, दैट्स इट, डेथ यहाँ नहीं है। नेक्स्ट, और अगर थोड़ा पीछे, हाँ, 12 साल की बच्ची के साथ अगर गैंग रेप हुआ है तो डेथ का प्रोविजन है, बाकी सारे पीनल प्रोविजंस वही हैं, आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर डेथ है, ये दोनों उसके लिए है। नेक्स्ट, अब मैं बता रहा था अदर फॉर्म्स ऑफ रेप, थोड़े टफ वर्ड्स हैं तो मैं बोलूंगा नहीं। निर्भया इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि जब आपके प्राइवेट पार्ट में लेडी के कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए जाए, देन इट इज अदर फॉर्म्स ऑफ रेप। नेक्स्ट,
नाउ जो हैवी सेक्शंस थे वो खत्म हो गए। तो मैं बता रहा था कि जो अभी ये जो हमने सेक्शंस देखे थे रेप के, होते हैं लेकिन कम लेडीज के साथ होते हैं, इतने नहीं है। मे बी 30% या 20% लेडीज के साथ होगा। अब जो हम कुछ सेक्शन 354 देखेंगे, दिस इज सेक्सुअल हैरेसमेंट डे टू डे लाइफ में। अभी लेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम कर रही है, या आप किसी कॉलेज में जा रही हैं, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं, गवर्नमेंट कंपनी में काम करती हैं, the moment you step out of your house, you may face this kind of harassment, because ये रेप नहीं है, harassment नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको लड़का छेड़ के जा सकता है, आप सीटी बजने के शिकार हो सकते हैं। आपको जैसे आप किसी मॉल में कपड़े बदल रहे हैं तो आपको, आपने देखा होगा काफी केसेस ऐसे हुए कि सम पीपिंग टॉम्स वर देयर, और वो सीसीटीवी कैमरा अंदर ही फिट करके रखा था रेस्ट रूम्स में, चेंजिंग रूम्स में। फिर हो सकता है कोई लड़का आपको अपना धर्म समझे कि आपको घर तक छोड़कर आना है, तो उसका अलग प्रोविजन है। कोई कपड़े खींचने की कोशिश करे, कपड़े उतारने की कोशिश करे पब्लिक प्लेस पे, तो उस चीज का प्रोविजन है। तो ये आप घर से जैसे स्टेप आउट करती हैं, इस चीज के लिए ये काफी चीजें हो सकती हैं। तो इस पे, इसी सेक्शन पे मैंने, जब हमारा ये निर्भया भी हुआ, हैदराबाद भी हुआ, तो मैंने मेरा ही एक शेर लिखा था इस बुक, जो मेरी बुक आई थी, कि आज के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जब भी बेटी घर से निकलती है तो अलविदा कहकर ही निकलती है। तो मतलब वी फेस ये, हम पब्लिकली जब आप सड़क पे जाते हैं तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कौन क्या आपके साथ करके चला गया। तो ये नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है लेडीज को, कि ये इन चीजों के लिए आईपीसी में क्लियर कट स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। तो पहला हम लेते हैं सेक्शन 354। अच्छा, ये मिसयूज भी काफी किए जाते हैं आजकल, तो उस पर भी मैं आऊंगा। फेक कंप्लेंट्स भी होती है, ऐसा नहीं है कि आदमी जो है हमेशा डरा ही रहे, बट फेक कंप्लेंट्स होती है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली यू नो कि पब्लिक पहले आदमी को ही गाली देती है कि किसी ने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। लेकिन अभी जैसे एक मी टू का मूवमेंट चला था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि काफी फेक कंप्लेंट्स भी थी। तो उस फेक कंप्लेंट्स की वजह से क्या होता है, जो एसेंस होता है उस एक सेक्शन का, या उस एक लिबर्टी का, या उस एक लीगल रेमेडी का, वो बहुत डाइल्यूट हो जाता है। इवन कोर्ट्स भी, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे दे आर नॉट टेकिंग लीनियंट व्यू इन फेवर ऑफ द हस्बैंड्स और मेल काउंटरपार्ट्स। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 354। अगर आपको किसी ने अपने पास खींचने की कोशिश करी, या आपकी, जिसकी वजह से आपकी मॉडेस्टी हर्ट हो सकती है, आपकी इज्जत को खतरा हो सकता है, जैसे स्लाइड में सीधा उसने सिर्फ रेप नहीं किया है आपका, उसने आपको अपने पास खींचने की कोशिश करी है और बाल खींचने की कोशिश करी है, तो ये सेक्शन उसको लगता है। दैट इज सेक्शन 354। अब जो हम आगे देखेंगे वो सेक्शन 354 ABCD है, लेकिन इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है, इसकी सजा अलग है, ये नॉन बेलेबल में आता है। और 354 में क्रिमिनल यूज होना जरूरी है, मतलब वो आपको अपने पास पकड़ के खींचना जरूरी है। यस, नेक्स्ट। अब ये आप टेक्स्ट पे मत जाइए, आप सिर्फ फिगर देखिए, जो पिक्चर है वो देखिए आप। जो जैसा मैं कह रहा था कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं या किसी कॉलेज में हैं, तो इसमें देखिए आदमी का हाथ कहाँ पर है, एंड द जेस्चर ऑफ वुमेन, उसकी हालत क्या हो रही है। ये पर्सन इन अथॉरिटी भी हो सकता है। तो ऐसा कोई एक्ट हो रहा हो, उसने आपको फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए एडवांस किया हो, या आपसे डिमांड करी हो सेक्सुअल फेवर्स की, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स क्या होते हैं, या आपको फोर्सिबली पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है, और ये भी कम नहीं पड़ रहा, तो एनी अदर जिससे आपको लगे कि हाँ, बहुत ही एक मिसयूज था इस सेक्शन का, कि एक ट्यूशन पढ़ रही थी लड़की, और टीचर ने बस उसके कंधे पे हाथ रखा था, एंड देन शी रिपोर्टेड दिस सेक्शन 354 है। और कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि भाई कंधे पे हाथ रखना है तो ये लड़की डिसाइड करेगी कि वो टच गंदा था या अच्छा था। तो काफी इस पे विवाद हो गया था, काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि ऐसे तो फिर हम, तो मतलब कोई भी हमारा जेस्चर जो है आदमियों को गलत ही समझा जाएगा। बट ऑब्वियसली लॉ इज लॉ, एंड थोड़ा लेडीज के फेवर में, और अच्छा भी है, क्योंकि जो 90% केसेस रिपोर्टेड होते हैं वो अर्बन एरिया से ही है। रूरल एरियाज की लेडीज तो अभी तक आई ही नहीं है। तो अगर उन लोगों को किसी तरीके से ये जानकारी पहुंचे कि आप लोग जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत लाभदायी होगा। नेक्स्ट।
जो दुशासन ने काम किया था महाभारत में द्रौपदी के साथ, अगर वो आज की तारीख में करता तो उसको ये सेक्शन लगता। अगर आपके कपड़े उतारने की कोशिश की जा रही है with the intent of making you naked, then section 354B gets attacked. Next. वॉयरिज्म, जैसे मैंने बताया था कि काफी किस्से हुए थे, मॉल्स में सीसीटीवी लगाए गए थे, रेस्टरूम्स में, एंड सम पीपिंग टॉम इज देयर विद अ फुल व्यू ऑफ यू चेंजिंग योर क्लोथ्स। तो फिर ये सेक्शन आया कि कोई भी लेडी अगर वो कुछ भी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है एंड शी डज नॉट वांट, वो ऐसी स्थिति में कि शी वुड नॉट लाइक समवन टू वॉच हर, maybe you might be having physical relations with your husband or with your, you might be in washroom, you might be having a bath, लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी झांकने की कोशिश करता है या आपको कैप्चर करने की कोशिश करता है फोटो वगैरह से, तो ये सेक्शन लगता है, दैट इज नोन एज voyeurism, and this is section is 354C. yes, next. Stalking. स्टॉकिंग का मतलब होता है आपका पीछा किया जा रहा है। जैसे मैं कह रहा था कि कोई भी सुंदर सी महिला दिखे तो लड़कों का धर्म हो जाता है कि हाँ इसको घर तक छोड़ा है। अच्छा, पुराने जमाने में ये बहुत ही शराफत के तरीके से किया जाता था, लड़की को शायद पता भी नहीं चलता था और इस टाइप के सेक्शन इसलिए बने नहीं थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ऑनलाइन मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इवन उस पर भी आपको स्टॉक किया जा सकता है। सबसे बड़ी एग्जांपल है, कोई लड़का आपको अगर परेशान करता है व्हाट्सएप पे, हाई लिखता रहता है और आप उसको रिप्लाई नहीं कर रही हैं, और वो बाद में ये भी लिखता रहता है, ओके व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, प्लीज रिप्लाई टू माय मैसेज, प्लीज से एटलीस्ट हेलो। तो दिस इज सम वे ऑफ स्टॉकिंग, तो इसे हम स्टॉकिंग मानते हैं, और जिसका ऑब्वियसली आईपीसी में प्रोविजन हमें स्पेसिफिक हो गया है 354D का। तो ये जो सेक्शंस आए हैं, पहले सेक्शन 354 ही था, लेकिन जब ऐसे क्राइम होने लगे तो ABCD, A इज फॉर ऑब्वियसली सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, B वायरिज्म हो गया, जिसमें हमने देखा कि वायरिज्म क्या था, स्टॉकिंग हो गया और डिस्रोबिंग हो गया। ये 4 सेक्शंस पे स्पेसिफिक। नेक्स्ट, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो स्टॉकिंग होती है, तो सोशल मीडिया पे कैसे ऑन मेल हो सकती है, फेसबुक हो सकता है, या आपका आजकल तो सबसे बढ़िया माध्यम है व्हाट्सएप हो सकता है। तो ये स्टॉकिंग का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, दिस इज फॉर ह्यूमर ओनली। कभी कभी हस्बैंड लोग ऐसे हो जाते हैं कि पीछे बैठा हुआ होता है जहां भी लेडीज जाती है। ये चीज हम डोमेस्टिक वायलेंस में देखेंगे कि जहां वाइफ बहुत परेशान है हस्बैंड से, वो चीज हम डीवी में देखेंगे, उसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीवी बोलते हैं। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ वेपन जो लेडीज को मिला था अगेंस्ट डाउरी और अगेंस्ट क्रुएल्टी। तो ये सेक्शन आया कि अगर आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, यू आर सो अब्यूज्ड दैट यू आर कमिटेड टू कमिट अ सुसाइड, योर इंटेंशन इज टू कमिट सुसाइड, तो इस सेक्शन में हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को सजा का प्रोविजन है, या फिर आपसे डाउरी मांगी गई है तो भी सजा का प्रोविजन है। लेकिन इस सेक्शन को मिसयूज किया गया बहुत जगह। इवन व्हेन आई ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स, तो मैं यही बोलता हूँ उनसे कि जब भी लेडी आए तो लेडीज को आप खुद समझाएं कि अगर गलत कंप्लेंट है तो ना करें, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर मूड बन गया तो कंप्लेंट होती है। और काफी जगह हमने देखा कि लेडी फिर पहले पहले जब नया नया सेक्शन था तो इमीडिएट अरेस्ट था, और लेडी जिस जिसका नाम लेती थी सबको अरेस्ट करना पड़ता था पुलिस को, अब बाद में फिर वो बेल के लिए जाते थे। लेकिन क्योंकि मिसयूज भी काफी हुआ, तो हम लोग आगे केस लॉज देखेंगे, तो कोर्ट ने बहुत लीनियंट व्यू लिया और ये बोला कि अरेस्ट पहले नहीं होगा, पहले आप ये केस जाएगा वेलफेयर कमेटी में, वेलफेयर कमेटी से दोबारा पुलिस के पास आएगा, पुलिस के पास फिर मीडिएशन होगा, फिर भी अगर लग रहा है देन एफआईआर विल गेट रजिस्टर्ड, और इसमें बेल का भी अब प्रोविजन है, इमीडिएट अरेस्ट आप नहीं। तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि जब मिसयूज होता है किसी सेक्शन का तो कोर्ट्स भी लीनियंट व्यू नहीं लेते हैं लेडीज के लिए, दे टिल्ट टुवर्ड्स मेल काउंटरपार्ट्स। बट यस, अगर हम जेन्युइन कंप्लेंट्स देखें तो हम लोगों ने तो ऐसी कंप्लेंट्स देखी है जहाँ एब्यूज हो जाता है लेडीज का और वो रिपोर्ट नहीं करती है, देन वी कम इनटू द पिक्चर कि हाँ उन्हें समझाते हैं कि एटलीस्ट यू रिपोर्ट। और इस सेक्शन में कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, इवन नेबर और आपके रिलेटिव्स, किसी को भी लग रहा हो कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो लोग आगे आ सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए। नेक्स्ट,
यस नेक्स्ट, आगे चलो। नेक्स्ट, क्रुएल्टी का मतलब बताया गया, क्रुएल्टी क्या होता है। अच्छा, सबसे बढ़िया केस था प्रीति कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें देखिए पहले क्या होता था कि लेडी समझिए हैदराबाद की है और उसका मायका यूपी में है। अब वो यूपी जाके कंप्लेंट करती थी मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट नहीं लेते थे बिकॉज अक्रंस ऑफ इवेंट कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। फिर इसका जजमेंट आया कि लेडी जहां भी शेल्टर लेती है लड़ाई झगड़े के बाद, तो जहां शेल्टर ले रही है वो उसकी कंप्लेंट वहीं पर रजिस्टर होगी। नाउ इट इज द हस्बैंड और रिलेटिव्स who has to come all the way from Hyderabad to various other places. Next. Now this was the misuse, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं समझा रहा था। Next. इसमें बताया गया था कि बेल के प्रोविजंस होने चाहिए और इमीडिएट अरेस्ट नहीं करना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को। और पुलिस ऑफिसर्स के लिए वेरियस गाइडलाइंस आई थी कि आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा था नेक्स्ट स्लाइड, कि वेलफेयर कमेटी के पास जाएगा, इसके पास जाएगा। फिर मंजूराम कलिता का एक स्टेट आया वर्सेस स्टेट ऑफ असम का एक केस आया, उसमें वाइफ छोटी छोटी लड़ाइयों पे पहुंच गई 498A के लिए। तो कोर्ट ने बोला था कि ये छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए कोर्ट नहीं बैठा है एंड 498A विल नॉट अप्लाई। अच्छा, आजकल डिवोर्स केसेस उल्टे हो रहे हैं। अभी मैंने देखा कि 2-3 केसेस ऐसे आए कि हस्बैंड मुझसे झगड़ता ही नहीं है, इस वजह से मुझे डिवोर्स चाहिए। आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत फेमस केस है कि उसे डिवोर्स इसलिए चाहिए क्योंकि वो लड़ना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि मैं जो बोलती हूँ ये कर देते हैं। तो मुझे एक नॉर्मल आदमी चाहिए कि कभी ना भी करे, कभी मुझसे लड़े। तो कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट, राजेश कुमार में गाइडलाइंस आई थी। नेक्स्ट, तो ये देखिए वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट की, इसे हम महिला समिति भी बोलते हैं। उसमें सोशल वर्कर्स, वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं। तो पहले कंप्लेंट वहां जाती है, उसके बाद फिर दोबारा पुलिस वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर पुलिस के पास जाती है, पुलिस देन अगेन विल ट्राई टू मीडिएट, देन अगेन फिर कोर्ट के पास जाती है, फिर कहीं जाके एफआईआर रजिस्टर होती है। यस नेक्स्ट, नाउ द लास्ट वन। तो पहले हम लोगों ने देखा रेप और मिसकैरेज वगैरह जो होते हैं कम होते हैं, फिर हमने देखा रेप होते हैं कम होते हैं, फिर हमने देखा सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं काफी होते हैं। नाउ आई कम टू द लास्ट पार्ट, डोमेस्टिक वायलेंस काफी होते हैं। मतलब 80-90% में यस कभी ना कभी तो हुआ ही होगा हर किसी लेडी के साथ। नेक्स्ट, अभी डोमेस्टिक वायलेंस में कितने तरीके के अब्यूजेस हो सकते हैं? देयर आर 5-6 मेजर अब्यूजेस, इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट, अब देख के ही पता चल रहा है कि ये, अच्छा मैं बता दूं डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट सिर्फ लेडी ही कर सकती है, आदमी के लिए यहाँ भी नहीं है। अगर आदमी प्रताड़ित है अपनी बीवी से, तो मेरे ख्याल से दिल्ली में काफी संस्थाएं हैं, महिला पीड़ित उत्पीड़न केंद्र ऐसा कुछ है, वहाँ जितने भी आदमी लोग हैं अपना पंजीकरण करा सकते हैं, दे कैन गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड, और बीवियों के प्रति जो भी उनकी शिकायत है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। बट हाँ, आईपीसी के अंदर भी काफी प्रोविजंस हैं, बट आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जेन्युइन कंप्लेंट्स का अगर हम देखें तो ये पहला अब्यूज है जो एक आदमी अपनी वाइफ के साथ, और मैं आगे आऊंगा, अपनी लिव इन पार्टनर के साथ करता है। और मैं और आगे चलूंगा तो एक अमेंडमेंट और है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो हाँ, लिव इन पार्टनर को भी उतने राइट्स मिले हैं जितने वाइफ को मिले हैं। तो पहला आता है, दिख रहा है हमको, वर्बल एब्यूज। वर्बल एब्यूज में मेनली आप देखते हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ का। अच्छा, आज आप घर पे जाके अपने हस्बैंड से कहना मत कि भाई सक्सेना जी ने समझा दिया, तो इट इज डोमेस्टिक वायलेंस। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर की शांति को भंग ना करें, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कितना एब्यूजिव है रिलेशनशिप वो आपको अपने आप को देखना है। नॉर्मल छोटी मोटी लड़ाइयों को आप ये ना समझे कि हाँ इट इज डोमेस्टिक वायलेंस। वर्बल क्या होता है, आप किसी लेडी को समझिए मेल चाइल्ड नहीं दे पा रही है तो आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसको बांझ कह रहे हैं अगर बच्चा नहीं हो पा रहा, आप उसके माँ बाप का नाम निकाल रहे हैं लड़ाई झगड़े में, विच इज वेरी कॉमन। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि जब भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो माँ बाप तो पहले आ जाते हैं, भले ही वो किसी दूर दराज गाँव में या इंटरनेशनल किसी प्लेस पे बैठे हो, लेकिन आदमी का परम धर्म है, वो उसे पता नहीं क्या सुख मिलता है उसमें कि तेरे माँ ने तेरे बाप ने ऐसा किया होगा। इट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ वर्बल। तो जितने भी आदमी लोग भी बैठे हैं तो वो भी समझ जाए आज के बाद, तो ऐसा ऐसा ना निकालें, क्योंकि लेडीज भी ये सेमिनार देख के ही जाएंगी घर पे। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे क्या क्या वर्बल फॉर्म्स होती हैं ऑफेंसेस की। नेक्स्ट,
देखिए इंसल्ट होती है, आप मतलब अच्छी नहीं दिखती, आप स्मार्ट नहीं है, नेम कॉलिंग है, आप उसके करेक्टर पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं कि ये मेल चाइल्ड नहीं दे पा रही, डाउरी नहीं ला पा रही, इस पे है, आप उसको जॉब करने से रोकते हैं, या आप उसको बच्चे की कस्टडी नहीं देते, या बार बार आप उल्टा हस्बैंड कहता है कि मैं कमिट कर लूंगा सुसाइड, देन ऑल्सो इट इज इमोशनल एंड वर्बल वायलेंस। नेक्स्ट। यहाँ देखा दो लोग लड़ रहे हैं पैसों के लिए, तो ऑब्वियसली आई कम टू इकोनॉमिक वायलेंस। अभी इकोनॉमिक वायलेंस कैसा होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप उसके घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, उसका सैलरी है, वो सैलरीड एम्प्लॉय है, तो आप उसकी सैलरी अपने साथ ज्वाइंट अकाउंट कर लिया है और उसकी सैलरी का कुछ भी हिस्सा उसको नहीं दे रहे, उसको अच्छे कपड़े खरीदने का मौका नहीं मिल रहा, आप रेंटेड प्लेस पे हैं, रेंट के घर पे रह रहे हैं और बीवी आपके साथ है, तो भी आप रेंट नहीं दे रहे हो, मकान मालिक आ रहा है, शी ऑल्सो हैज टू फेस द हैरेसमेंट। तो इस तरीके के जो वायलेंस होते हैं दैट इज इकोनॉमिक वायलेंस। नेक्स्ट। तो ये है नॉट प्रोवाइडिंग हर मनी फॉर मेंटेनिंग हर और चिल्ड्रन, मतलब आप उसको भूखा रखते हैं, बच्चों को भूखा रखते हैं, क्लोथ्स नहीं दे रहे हैं। और ये आपको मतलब इम्प्रैक्टिकल सी बात लग रही होगी, लेकिन रूरल एरिया में तो बहुत ही होता है, इवन अर्बन एरियाज में भी काफी हो जाता है, बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद सच टाइप ऑफ क्लाइंट्स, तो हमको लगता है कि यार हम बॉम्बे में हैं तो भी इस टाइप के केसेस हैं, लेकिन हाँ केसेस हर जगह है, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, नॉट इवन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह क्राइम है। आप उसकी सैलरी ले रहे हैं, आपने उसको घर से निकाल दिया, आप अच्छा 3 कमरों का घर है, आपने एक कमरे को लॉक कर दिया कि इसमें तुम नहीं जाओगी, सिर्फ हम लोग जाएंगे, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट। स्लाइड से ही आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। दिस इज फिजिकल वायलेंस। आप इसको स्लैप करते हैं, आप उसको बाइट करते हैं, किक करते हैं, पंच करते हैं, शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ को मतलब आप उसको मतलब किसी चीज से पुश कर देते हैं, देन इट इज फिजिकल वायलेंस। स्लैपिंग, बीटिंग, हिटिंग, बाइटिंग, किकिंग। तो जब जेन्युइन केसेस में हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि बाइटिंग जो पर्टिकुलर एक चीज है, इवन लेडी की खाल तक बाहर आ चुकी है, बोन दिखने लगी थी, इतनी बुरी तरीके से उसे बाइट किया गया था। पंचिंग, मुक्के नॉर्मल हो जाता है, मेडिकल रिपोर्ट में सब आ जाता है। स्लैपिंग तो ठीक है, छोड़िए, फिर हॉकी स्टिक का भी कहीं कहीं यूज किया गया है, और क्रिकेट बैट का भी यूज हो जाता है। और अगर ये सब चीजें कम है, तो एक लास्ट लाइन है कि कॉजिंग बॉडीली पेन और इंजरी इन एनी अदर मैनर, किसी भी और भी वजह से अगर उसको कोई पेन होता है, देन ऑल्सो दिस टाइप ऑफ वायलेंस विल बी कवर्ड अंडर फिजिकल वायलेंस इन डीवी। नेक्स्ट। अभी सेक्सुअल वायलेंस। अभी देखिए कोई क्वेश्चन उठाएगा कि ये तो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड हैज ऑल द राइट्स टू हैव फिजिकल रिलेशंस, बट आप लोगों ने देखा होगा कि लेडीज ज्यादातर इल्जाम क्या लगाती है, मतलब हस्बैंड अननेचुरल सेक्स की मुझसे वो कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें तब तक ठीक होती हैं जब प्यार बना हुआ है, जैसे ही प्यार खत्म होता है, तो मैं कहता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस, जो प्यार में की गई बातें हैं वो उल्टा अगर कर दे, तो देन इट गेट्स कवर्ड इन डोमेस्टिक वायलेंस। अभी देखिए कोई हस्बैंड प्यार में पोर्नोग्राफी दिखा रहा है अगर अपनी वाइफ को, जब तक प्यार मोहब्बत है तब तक ठीक है, लेकिन वाइफ ने अगर उसको उल्टे तरीके से ले लिया, और जेन्युइन केसेस में अगर लेडीज के ऊपर काफी इस तरीके की दिखाकर उनको एब्यूज किया जा रहा है कि देखो इसमें ऐसा हो रहा है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, देन इट इज सेक्सुअल वायलेंस। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एग्रीड पर्सन कौन हो, मतलब कंप्लेंट कौन कर सकता है? एनी वुमेन, एनी वुमेन। नेक्स्ट। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब आप किसी रिलेशन में एक घर के अंदर रह रहे हैं, और उस घर को हम बोलते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। नेक्स्ट। शेयर हाउस होल्ड का मतलब बताया गया कि आप कहीं पे भी रह रहे हैं, आपने उस घर का एक साथ रेंट दिया है, और ये मैट्रिमोनियल हाउस भी हम कभी कभी बोलते हैं उसको, जहाँ शादी के बाद आप पहली बार जाती हैं, ये शेयर हाउस होल्ड। नेक्स्ट। अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि ये डीवी अब तक जैसा पिक्चर में है कि सास बहू को सता रही है, और बहू फिर इल्जाम लगा रही है उसके हस्बैंड और सास पे और रिलेटिव्स पे। देन इसका एक देखिए आगे चलिए, तो इसको रिस्पोंडेंट कौन होता है, मतलब हम किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं? तो पहला क्या था? एनी एडल्ट मेल। एनी एडल्ट मेल मतलब आप अपने हस्बैंड को कर सकती हैं, डॉटर इन लॉ, अपने ससुर पे कर सकती हैं, रिस्पोंडेंट वही होगा। किसी और फीमेल रिलेटिव के लिए आप कंप्लेन नहीं कर सकती थी।
नेक्स्ट, लेकिन इस केस में जो डिसाइड हुआ वो ये हुआ कि इवन जो फीमेल रिलेटिव्स हैं हस्बैंड की वो भी कवर हो जाएंगी। अब यहाँ ये बात है कि क्या सिर्फ बहू कर सकती है सास के लिए, क्या सास बहू के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट एक दिया। नेक्स्ट, ये इस वजह से कि बहू भी ऑब्वियसली ही शी कैन बी एन ऑफेंडर ऑल्सो। उसके बाद एक जजमेंट आया ये वाला जिसमें बोला गया कि यस, मदर इन लॉ ऑल्सो कैन कंप्लेन अगेंस्ट डॉटर। तो ये अब नेक्स्ट, तो यही एक सास बहू का झगड़ा दूर करने का उपाय है कि दोनों संभल के ही रहें, क्योंकि अब लॉ जितना पहले बहू के लिए था उतना सास के लिए भी है। नेक्स्ट, ये दिस इज ओनली फॉर ह्यूमर। नेक्स्ट, यस बताइए। थैंक यू सो मच विशाल जी, आपने बड़े जटिल विषय को बहुत सरल शब्दों में समझाया, बहुत सारी महत्वपूर्ण और नई जानकारी हम सबको मिली। आई वुड लाइक टू थैंक मच अगेन। नाउ मैं आयुषी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो भी आए हैं ड्यूरिंग दिस वेबिनार एंड शी कैन आस्क टू एडमिनिस्ट्रेशन। आयुषी जी प्लीज। A very good evening to one and all present over here. Thank you, Dipankar Sharma sir, Director Dr. KNMI, to give me such an opportunity. Here, Ayushi from Dr. Ken Modi Foundation. A big thank to our today's speaker, Advocate Vishal Satyaprakash Saxena sir, Faculty of Maharashtra Police, to train police officers, Advocate Supreme Court of India, Bombay High Court as well. So, sir, your guidance that you provided during this webinar was really wonderful and very informative on women empowerment and legal rights. Was really very informative. And on behalf of Dr. Ken Modi Foundation, I appreciate and value of your collective experience, talent, and insight in this specialty area. Thank you so much, sir. And a sincere gratitude to Honorable Dr. D.K. Modi, sir, President Dr. Ken Modi Foundation, Honorable Captain Rajiv Saxena, sir, Vice President Dr. Ken Modi Foundation, Mr. Meghra Sharma, sir, Administrator Dr. Ken Modi Foundation, Mr. UN Mishra, sir, Registrar Dr. Ken Modi Foundation, Mr. Dipankar Sharma, sir, Director Dr. Ken Might, for providing this platform for the informative discussion. So, sir, regarding women empowerment, we have already discussed so much that women empowerment has been an issue of immense discussion and contemplation over the last few decades worldwide. This is an agenda has been on the top of the list of most government plans and programs as well as of Modi government also. Efforts have been made on regular basis across nations to address the issues. However, it has been observed that most of the policies and programs, empowerment in the economics is only working in the belief that economic self-reliance empowers women, ignoring other variables like health, education, literacy, etc. But I just found a few questions like from one of our faculty, Mr. Nidhi Sharma sir, is asking what tips and advices would you give to us at women empowerment? What tips and advices would you give to us, Sir Vishal sir? नहीं, be specific, मतलब where you want to implement like those in steps. women empowerment, like if like as we hear women empowerment increases the chances of domestic violence, we have also heard. So we just wanted about the some tips and advices by which we can ensure women empowerment. Why not to take an example of your institute? इंस्टीट्यूट से शुरू करते हैं, बिकॉज उन्होंने सोचा होगा तो उनके दिमाग में इंस्टीट्यूट ही कहीं होगा या घर होगा ऑब्वियसली, तो मे बी है ना। तो देखिए, पहले तो वो आईसीसी आप लोग यू हैव ऑलरेडी डिजाइन्ड एन आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। यस, वी डू हैव। नेक्स्ट स्टेप जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यू पुट पोस्टर्स एट वेरियस प्लेसेस। जो भी अगर आपके कॉलेज में कुछ इंसिडेंट हुआ है या यूनिवर्सिटी में कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो देखिए जब तक आप नो स्मोकिंग का बोर्ड नहीं लगाते, पीपल टेंड टू स्मोक, बट व्हेन यू पुट इट ऑन द वॉल्स दे रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स। तो आप बताइए कि आपने ऑब्वियसली सीसीटीवी का सर्वेलेंस होता है तो बोर्ड लगता है, देखिए दिस प्रेमिसेस इज अंडर 24 आवर्स सीसीटीवी सर्वेलेंस। आप ये पोस्टर भी लगाइए कि वी डोंट प्रमोट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हेंस IPC or ICC will come into the picture if anyone is found guilty or
आप ये भी पोस्टर लगाइए कि वी हैव आईसीसी, एनी वुमन हु हैज मतलब सम कंप्लेंट्स, please don't shy and complain to us. So in a way, this is the first step you should take in your institute कि आप you मतलब spread the knowledge among the women also, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लेडीज को Right. खुद को पता नहीं होता कि there is a complaint committee, where to go. Right. तो एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, और जब ये पोस्टर लगते हैं ना तो ऑब्वियसली एक डर बैठता है कि हाँ वी आर अंडर सर्वेलेंस, वी विल फाउंड गिल्टी, देयर इज अ कमिटी, वी कांट harass such a मतलब we can't have any violence against women. उसके बाद you can have a survey, जितनी भी लेडीज हैं आप उनसे सर्वे करा सकते हैं इंस्टीट्यूट में, which will be like anonymous obviously without giving any names. आप उनसे पूछिए कि आपके साथ कभी कुछ हुआ है, विदाउट नेमिंग योरसेल्फ आप हमें बताइए कि कॉलेज के किस हिस्से में हुआ है या कहाँ हुआ है, किस टाइम पे हुआ है. देन ये सर्वे आपको बहुत हेल्प करेगा. हो सकता है कोई एक ऐसा कॉर्नर हो इंस्टीट्यूट का जो आपकी आंखों से अभी भी बचा हुआ हो, कोई ऐसा लड़का हो जो आपकी आंखों से बचा हुआ हो. और मैं आपको पहले बता दूं, मे बी फैकल्टी भी हो सकती है, एक्सक्लूडिंग फैकल्टी हो सकती है, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है. मे बी सम स्ट्रेंजर माइट बी कमिंग टू योर कॉलेज टू एंड फ्रो, आपको पता ही ना हो, और वो हरकत करके जा रहा हो. क्योंकि लेडी का क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होती है, वो एक होती है कि वाई टू कंप्लेन, लेट इट बी. एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा. बट व्हेन ही कम्स थ्राइस, 4 टाइम्स, तब वो टेंशन में रहती है. अभी क्या होता है, घर वाले भी पहले लेडी की नहीं सुनते. वो मैंने भी देखा है, महाराष्ट्र तक में लेडी को पहले समझाते हैं, अरे तुझको कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा कंप्लेंट वगैरह करने की जरूरत. तो यू प्रोवाइड देम सच अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट. आप कोशिश करके, मतलब इट विल बी लाइक फर्स्ट इंस्टीट्यूट वेयर आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर एंड इट विल इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ पोस्टर्स एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट. So you will come to know about the results within maybe 2 months is too far. You will come to know about the results within a week. एक हफ्ते में आपको देखिए कितनी कंप्लेंट्स आती. Right, So sir. you show in your attitude that yes, we are with you, ladies. Right, sir. So what I'm getting that you are promoting awareness for friendliness, awareness for women empowerment and the legal rights Legal about rights also, yes. women, legal Yes. rights. Thank you so much, sir. Your advices are really very beneficial for us. Even I'm a lady, so I've heard throughout, so it was very wonderful. And I would like to give my heartfelt thanks to everyone who is listening us, who is joined us across the nation, like all the directors, deputy directors, faculty members, student, and everyone who has joined us. Thank you so much for attending this informative and educative webinar. Thank you. Part about working at women's empowerment. Section 354, sexual harassment in general manner. Like you are sitting in 354. front of your principal, in front of your management guy, and he's trying to approach you in an inappropriate way. That is the most stressful. मतलब वहाँ challenges बहुत है. And somebody is writing, women's empowerment increases the chance of domestic violence. Is it true or not? देखिए वो फिर फेक कंप्लेंट्स में आ जाता है. अभी मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं पूछे जो पूछे जाने चाहिए एक्चुअली. क्या एक लेडी दूसरी लेडी के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल कर सकती है? किसी ने पूछा ही नहीं अभी तक. कर सकती है. सेक्शन 354 है. लेकिन रेप का चार्ज नहीं लग सकता एक लेडी, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था व्हेन हस्बैंड वाज रेपिंग अनदर लेडी एंड दिस लेडी वाज हेल्पिंग हर हस्बैंड. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट इज हाईली अनकंसीवेबल दैट अ लेडी विल बी रेपिंग अ लेडी. तो हाँ, रेप का चार्ज नहीं लग सकता, बट हाँ ये हैरेसमेंट का चार्ज जरूर लग सकता है. दूसरा क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट है, इज किसिंग अलाउड इन पब्लिक प्लेस? विल इट क्रिएट न्यूसेंस लाइक वी सॉ इन सेक्शन 294? ऑब्वियसली मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ होता नहीं होगा, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी ऑर्डर दिया है कि इट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी. लाइक बॉम्बे में हाँ इट इज, आप मरीन ड्राइव पे बैठे हैं तो हाँ ये न्यूसेंस नहीं माना जाएगा. शायद इंस्टीट्यूट में अब नहीं माना जाएगा बिकॉज वी आर मच हैविंग अ ब्रॉडर व्यू. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी उठने चाहिए कि किसिंग इन पब्लिक प्लेस ऐसा भी अब ऑफेंस नहीं रह गया है, मतलब इट इज पार्शली अलाउड नाउ. और आपका जो था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ जाएगा अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट करें. तो देखिए फेक केस तो अभी भी हो रहे हैं.
फेक केस तो आप वैसे भी नहीं रोक पा रहे, ये तो उन लेडीज के लिए है जो बाहर नहीं आ पा रही है, उनको किस तरीके से बाहर निकालें। तो जो पढ़ी लिखी लेडीज है उनको तो पहले से ही पता है कि हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि मैं फंसा सकती हूँ। या पढ़ी लिखी लेडीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ी लिखी जेन्युइन लेडीज है वो भी बहुत कमा पाती है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स का या पीयर प्रेशर यही रहता है, फर्स्ट सेव योर फैमिली लाइफ। पुलिस वाले भी, आप पुलिस में कंप्लेंट करने जाओगे ना तो देख लो बहन जी, अब ये लास्ट रिजॉर्ट है आपका, फिर पति आपको घर पे नहीं लेगा। मतलब हर बार यही होता है कि पति आपको घर पे नहीं लेगा। तो इसलिए वो लेडी फिर, पुलिस वाला भी आपको बार बार हर स्टेज पे बोलता है आप भी सोच लो, अब भी सोच लो। हमेशा कहीं ना कहीं वो इस पे इतना प्रेशर आ जाता है कि शी डजंट इवन वांट टू कंप्लेन। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ऐसी कोई मैजिकल स्टिक नहीं है कि यू आर कंप्लेनिंग टू द पुलिस एंड मैटर विल गेट रिजॉल्व इन 2 or 3 days। नो, 2 to 3 months तो कहीं नहीं गए। इवन इफ आई एम फाइलिंग अ डोमेस्टिक वायलेंस केस, नो, कोर्ट की पहली तारीख ही 2 महीने की मिलती है। तो थोड़ा चैलेंज रहता है। कई बार ऐसा भी होता है सर, मैंने देखा कि कुछ हुआ, क्राइम हुआ, कोई आप जाते हैं FIR वगैरह लॉन्च करने, तो इवन पुलिस वाले भी खुद ही वो कहते हैं कि नहीं रहने दो, देख लो बात करके सुलझ जाए, या कुछ ऐसी चीजें आती हैं। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, या क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, पहला तो पुलिस यही बोलती है कि दिस इज अ फैमिली डिस्प्यूट, वी वोंट इंटरफेयर। तो देन द लेडी हैज टू टेक हेल्प फ्रॉम अ लॉयर, क्योंकि अगर पुलिस डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं कर रही है, देन देयर इज अ प्रोविजन यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट एंड हैव डायरेक्शंस फॉर द पुलिस टू रजिस्टर एन FIR। जी, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें तो जो जी, हाँ बोलिए। जो जनरली केसेस कोर्ट में फाइल करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला भी क्या कुछ ऑप्शन होता है महिलाओं के पास कि हम उसमें जाएं और तुरंत हमें समाधान मिल जाए? आप जा सकते। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में भी अगर मैं कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ तो मैं एक इंटरिम रिलीफ की कंप्लेंट अलग से फाइल करता हूँ। तो उस इंटरिम रिलीफ में क्या होता है, देखिए, अगर मुझे घर से निकाल दिया तो पहले तो मुझे रेजिडेंस ऑर्डर्स दीजिए, मेरे बच्चों की मुझे कस्टडी दिलवाइए। तो पेंडेंसी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस केस, मजिस्ट्रेट विल इंस्टेंटली गिव दिस इंटरिम रिलीफ कि ठीक है, जब तक केस चल रहा है तब तक आपको ये महीने का खर्चा, बच्चों की कस्टडी और घर रहने को, ये आपको मिल जाएगा। तो वो थोड़ा शॉर्ट स्पैन में हो जाता है। थैंक यू सर, thank you so much everyone. I think no more queries there. So it was really a knowledgeable session to all of us. Thank you once again, Advocate Saxena ji, and everyone joined here. Thank you. Thanks. Thank you.